Hello students, myself Rakesh Misra. Today we are going to discuss about sexual reproduction in plants. This is all about matter of class 10, subject biology, chapter 3, the how do organisms reproduces. So read back in online class and see whatever the mode of reproduction in plants and what are the basic features that involve in sexual reproduction in plants. So sexual reproduction in plant means the flowering plant. So write down sexual reproduction are well developed. Sexual reproduction, first point, sexual reproduction are well developed. Sexual reproduction are well developed in flowering plants. In flowering plants. What do you mean by flowering plants? Flower producing plants. Flower producing plants are known as flowering plants. ठीक है, जनरल टर्म्स है, इसमें तो कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है. Flowering plant means flower producing plants, means those plants that produce flower. दूध देने वाली गाय, ऐसी गाय जो दूध देती है. ठीक है, सिंपली बैट्समैन खेलता है, बैट्समैन मतलब जो बैटिंग करता है, बॉलर मतलब जो बॉलिंग करता है. सिंपली फ्लावरिंग प्लांट में द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट. इसको प्लांट्स के एंजियोस्पर्मिक ग्रुप में रखा गया. लास्ट का सबसे हाईली डेवलप्ड प्लांट एंजियोस्पर्म. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. फ्लावर्स आर reproducing organs फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं. दैट कंसिस्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दैट कंसिस्ट मेल एंड फीमेल reproductive system. As you all know, for sexual reproduction there is a need of at least one male body or there is a need of at least one female body. Only male or only female cannot able to perform the sexual reproduction. It means only male cannot produce child, only female cannot produce child. Similarly, in plants, the male plants cannot produce the new offspring or new kinds of young one, and the female cannot produce the new young one through the sexual reproduction. The main motto, the main meaning of the sexual reproduction is the male possesses the very specific system, as like the respiratory system, digestive system, the excretory system. Human body and body of other living being possess very special system, the group of organs that perform the process of reproduction. That kinds of system is known as reproductive system. In male, the reproductive system called as male reproductive system. In female, the reproductive system called as female reproductive system. As like animal, plants have also male and female reproductive system. But that male and female reproductive system will be available in very special organ. That organ are the flower. So flower is the very special parts of plants where the male and female reproductive system are found. It means either the two plants having two flower having two male and female reproductive system, or the single plant having single flower consist both male and female reproductive system. In angiosperm, in higher plants, the flower may be two, one having male reproductive system, another having female reproductive system. And flower may be only one, that is both male and female reproductive system will be in the same plant, same flower. So let the next topic, male reproductive system. Male reproductive system
of plants called stamen. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्लांट का होता है उसको स्टेमन बोलते हैं. इसको और क्या क्या बोलते हैं? अदर नेम एंड्रोसियम. अदर नेम एंड्रोसियम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको मैं रिप्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, टाइम नहीं है, इतना जितना देर से बोल रहा हूं ना उतना देर में लिख देता. ठीक है, बस ये शॉर्ट में जगह नहीं है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम कॉल्ड, बस फीलिंग समझो, भावनाओं को. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पूरी बातें लिख देना. कॉल्ड पिस्टिल. क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल. और क्या क्या बोलते हैं? कार्पेल. और क्या क्या बोलते हैं? गाइनोसियम. तो इसके बहुत सारे नाम. अब ये तो क्लियर हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? कार्पेल है. ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो गया ना? मीन्स मेल गैमीट, male germ cell form in stamen and female germ cell will be formed in pistil. Male and female germ cell, male and female germ cell, that you know that gamete. ठीक है, male and female germ cell, that is known as gamete, form in stamen and pistil respectively. Form in stamen and pistil respectively. Respectively लिख देना, ये respectively. Now the next point. Point number 6. Listen. Some flower possess only male or female reproductive system, and some flower possess both male and female reproductive system. Some flower consist only stamen or pistil, called unisexual flower. Some flower consist only stamen or only pistil, called as unisexual flower. अगर वो सिर्फ स्टेमन कंसिस्ट करेगा तो उसको मेल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे. नेक्स्ट, if consist only male reproductive system, RS का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बार बार नहीं लिखेंगे. अगर फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है तो क्या बोलेंगे? then called मेल फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर. अगर कोई फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, यानी कि सिर्फ स्टेमन है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेल फ्लावर. सिंपली जैसे ह्यूमन बीइंग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले को मेल बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले को फीमेल बोलेंगे. ठीक है, ऐसे प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले को क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले को फीमेल फ्लावर. मेल फ्लावर का दूसरा नाम क्या है? स्टेमिनेट फ्लावर. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पर्सन को बोलते हैं मेल, और फीमेल वाले को क्या बोलते हैं? फीमेल. इसको मैन वुमन भी बोलते हैं. वैसे ही अदर नेम है स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर. तो ये पॉइंट नंबर 8 को तुम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना. इसी 7 के बेस पे क्या लिखना? इफ कंसिस्ट ओनली
male reproductive system then called male reproductive system. Means अगला क्या है, if female reproductive system means क्या लिखना है, if consist female reproductive system, क्या consist, if flower consist only female reproductive system, ये only लगा देना, ठीक है. If flower consist only female reproductive system, that called female flower, female flower. और क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट. यहां तक बातें क्लियर हो गई सबको. चलो अब पॉइंट नंबर 10 आते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ्लावर में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाते हैं. मीन्स व्हेन, अब एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख सकते हो. स्टेमिनेट फ्लावर का एग्जाम्पल यहां पे मैं बोल दे रहा हूं, मुंह से लिख लो, पपाया, कुकुम्बर, पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन. ये स्टेमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर का एग्जाम्पल हो जाएगा. भाई जो प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा, जो प्लांट मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग कंसिस्ट करेगा, उसमें ही स्टेमिनेट और पिस्टिलेट मिलेंगे. ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल, पिस्टिलेट फ्लावर का भी एग्जाम्पल सेम, वाटरमेलन, पपाया या कुकुम्बर भी लिख देना एक्स्ट्रा, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, और इसका भी वही पपाया, कुकुम्बर एंड वाटरमेलन. ठीक है, जैसे मैं कहूं कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बॉडी में होता हो, तो मेल का भी एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग होगा, फीमेल का भी एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग होगा, मतलब एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग ही होगा. ठीक है, बातें क्लियर हो गई कि नहीं. अब पॉइंट नंबर 9 पे आ जा रहे हैं हम लोग. पॉइंट नंबर 9 का मतलब क्या है, जब मेल फीमेल दोनों एक ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही फ्लावर में होता है, तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, तो आगे लिख लेना कॉपी में, अपने हिसाब से सेंटेंस बना देना. When male and female reproductive system will be in the same flower, then flower called as bisexual flower. ठीक है, एग्जाम्पल हिबिस्कस, एग्जाम्पल हिबिस्कस, एग्जाम्पल हिबिस्कस. ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आ गया पॉइंट नंबर 10. पॉइंट नंबर 10, मेल फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस एग सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये लास्ट का पॉइंट है. मेल फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन and female flower produce egg cell as germ cell. यानी कि मेल जर्म सेल किस में बनेगा, स्टेमन में, पॉलन ग्रेन में. ठीक है, मेल जर्म सेल किस में बनेगा, पॉलन ग्रेन में, और फीमेल जर्म सेल किस में बनेगा, एग सेल में. पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा, स्टेमन में यानी मेल फ्लावर में. ठीक है, और एग सेल कहाँ बनेगा, पिस्टिल में यानी कि फीमेल फ्लावर में. सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फ्लावर, हम लोग क्या बात करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करने जा रहे हैं. ठीक है, कैसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल. ठीक है, तो फ्लावर को बनाना आसान है, बस उसका LS समझ लो, LS करके लिख देना. LS का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. ठीक है, चलो मैं बना रहा हूं, सब लोग बनाते रहना. सबसे पहले फ्लावर का ये बेसल पोर्शन होता है जिसको हम लोग रिसेप्टिकल या थैलेमस बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिसेप्टिकल और थैलेमस. क्या बोलेंगे इसको, रिसेप्टिकल और थैलेमस. और जिसको तुम लोग फ्लावर का डंठल बोलते हो ना, डंठल, उसको बोलते हैं पेडिसेल. क्या बोलते हैं, पेडिसेल, PEDICEL, पेडिसेल. ठीक है, फ्लावर का जिसको डंठल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल. अब इस थैलेमस पे
फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों डेवलप होता है। कैसे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये उसका ओवरी है, ये पोर्शन जो दिख रहा है, छोटी क्लास में तो लोग 8 में बनाए होंगे, दिस इज कॉल्ड ओवरी एंड दिस पोर्शन इज नोन एज स्टाइल दैट आर स्टिकी स्टिग्मा। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, विच कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज कलेक्टिवली फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज समटाइम नोन एज कार्पल or this is sometime known as pistil. This is also known as gynoecium. फ्लावर का डंठल पेडिसेल, फ्लावर का रिसेप्टिकल थैलेमस। फ्लावर के रिसेप्टिकल पे एक स्वॉलन ओवरी है, फूला हुआ, एक डंडा है स्टाइल, और उसके ऊपर चिपकने वाला डिस्क शेप स्टिग्मा है। ये तीनों मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बना दे रहा है इस साइड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान से सुनो, इस साइड बना दे रहा है। ये जो दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इधर भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। उधर भी मैंने बना दिया, इधर भी बना दिया। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, एंथर, और ये जो डंडा दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। भाई सिस्टम का मतलब कोई एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें मिलकर सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो ये एंथर और फिलामेंट दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, ये दोनों जुड़ के स्टेमन बनाएंगे, और इट इज नोन एज एंड्रोसियम। इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 नाम हो गए, गाइनोसियम, कार्पेल, पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 ही नाम है, स्टेमन और एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। female reproductive system consists stigma, style, ovary, and male reproductive system consists anther and filament। यहां तक बातें क्लियर हो गई सबको। इसके अलावा फ्लावर को अगर क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो थैलेमस के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड, दैट इज नोन एज द सेपल, that is known as sepal, and it is green in color, so no doubt about the function, green in color, so no doubt, you are having no doubt about the function of sepal, the photosynthesis and store the food। अब आते हैं पेटल, अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल। ठीक है, दोनों साइड होगा, दोनों साइड में बना दे रहा हूं। This is the petals, this is colorful part, and this is known as petals। So this will be the petal, listen, and this is the colorful parts of plant, this will be the colorful parts of plant, listen, petals are colorful, so main function of petal is to attract the insect at the time of pollination।